Hi everyone, so welcome to this new video. Now, as I have told you in the earlier videos, that we would be taking things as and when the day comes, on a daily basis from the month of February 2022. So, today is 1st of February and we are starting with it. Regarding all the leftover contents for the month of January, because we started it really late, almost towards the end of the month. So, simultaneously, I will be proceeding with that also. So, from now on a regular basis, on a daily basis, you would be getting two sets of videos. One would be regarding the month of January. Now that can be one video, two video, three video, depending on the availability of time and certain unforeseen situations that I would cater to. And one mandatory video that would be for the month of February, so that we do not lag behind, at least from here on. And as and when it will be possible, the month of January would be finished at the earliest. So those of you who are the new subscribers, or let's say have not yet subscribed to the channel, in case you find the content really helpful for your preparation, because we deal it in a very different way which probably is not available anywhere in the market. This is slightly unique, as well as catering to both the prelims and main stage of the examination. So you can just check the video and accordingly decide for that. Please do like, comment, share and subscribe the channel. Let's start discussing about the February 1st 2022, which is today. So here, that you know that yesterday the Economic Survey of India was presented and today is the budget day. Okay, अब तक तो खैर सारी चीज़ें out हो ही चुकी हैं. Now that when you will do the budget and the survey in detail, that is a part of your economy, उस पर हम आगे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. That is why they have talked about the budget coverage. इसको कैसे क्या करना है उस पर हम थोड़े और देर में बात करेंगे. Okay, that caters to your Indian economy section. Next we start with the main headings and the subheadings. Because economic survey कल आया हुआ था, so they have talked about that it pegs the growth at 8 to 8.5% in 2022-2023. Now to understand, now you will have many news in the whole newspaper related to the economic survey. अब इसको prepare करने का तरीका होगा क्या? सबसे पहले तो firstly you will try and know that what exactly is that you understand by economic survey. ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है जो सरकार, एंड अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल माई लर्नर्स, ऑल माई व्यूअर्स, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यू आर दी बिगिनर्स, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कोई चीज़ बता रही हूँ. दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, इट्स गुड फॉर यू एनीवेज, यू नो, तो आई डोंट नीड टू से दैट. ठीक है. अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे में क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है. कौन निकालता है, हु रिलीजेस, कब रिलीज होती है, एट्सेट्रा. एंड ऑफ कोर्स इसके जो कंपोनेंट होते हैं या जो इसका कंटेंट होता है वो क्या होता है. सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज दैट बिफोर रीडिंग द सर्वे, नो अबाउट द बेसिक स्टैटिक डिटेल्स ऑफ द सर्वे. ठीक है. व्हेन यू रीड द इंट्रोडक्शन, जब आप इसके बिल्कुल प्रीफेस में इसको बिल्कुल बिगिन करोगे तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है, क्या चीज़ें हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. सो दैट यू विल गेट फ्रॉम देयर. अब इकोनॉमिक सर्वे में जो डिटेल्स होंगे वो समझने के लिए आपको कुछ कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है. Until and unless you are aware about those core economic concepts, it won't be easier for you to get hold of this particular document, because this is very technical in nature, and also you have to prepare it very selectively. You don't have to do everything from the survey. ठीक है. For that you need to know the details about the syllabus also and the previous year question also. आपको तभी तो समझ में आएगा ना कि किस एरिया को आपको कवर करना है फ्रॉम द सर्वे. सो टू प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे, जब आप स्टैटिक इसका कर लो अबाउट ओनली द सर्वे, एंड फोकस ऑन फिनिशिंग द कोर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. अगर वो फिनिश आपका सही टाइम पर हो जाता है, वो आपको समझ आता है, ओनली देन यू स्टार्ट विद द सर्वे. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल द 2022 appearing aspirants, I would assume that you are already done with your economics basis and basics. Now that you are done with your economic basis, you would understand about the different concepts and the terminology, so you can use the survey to your advantage. But for people who are, let's say, planning to appear for 2023, अभी आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं हुई होगी, तो आप क्या करोगे, आप पहले अपना इकोनॉमी का बेस बनाओगे. फर्स्टली यू विल फिनिश योर इकोनॉमिक बेसिक कंटेंट एंड देन ओनली यू विल जंप ऑन टू दी सर्वे, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी. ये तो सर्वे की बात हो गई. आज जैसे बजट की बात हो रही है,
अच्छा, पूरे पेपर में आपको क्या होगा कि सर्वे और बजट से रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स हैं, पूरा पूरा पेज कभी कभी निकाल देते हैं, पूरे पूरे न्यूज़पेपर को कभी कभी ओनली दे डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. तो जब आप सर्वे का सारा प्रिपेयर कर लोगे, यू विल नॉट वेट टू फिनिश द स्टैटिक. वो तो आप तब करोगे ना जब आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे एज ए डॉक्यूमेंट पूरा ख़त्म करना है. एंड ट्राई एंड नॉट गो फॉर द समरी. ट्राई डूइंग थिंग्स फ्रॉम योर एंड. ब्राउज करके आपको जब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आप खुद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सिलेक्ट कर पाओगे. किसी और के समरी पे डिपेंड करना इज़ नॉट गुड. हाँ, यू कैन यूज़ द समरी टू योर एडवांटेज, टू योर एडिशन, कि आपसे कुछ मिस तो नहीं हो गया है, सामने वाले ने कुछ एडिशनल तो नहीं बता दिया, कुछ ज़्यादा अच्छे से तो नहीं एक्सप्लेन कर दिया जो आप नहीं समझ पाए. उन फिलर्स के लिए यू यूज़ दी समरी और लेट्स से एनी अदर कंटेंट फ्रॉम एनीबडी. लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर में सर्वे से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, लेट्स से इन्होंने जो भी डेटा वगैरह दिया हुआ, अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात की है, उसको आप अभी से साइड में नोट करते जाइए. जस्ट नोट इट. समझ आए नहीं आए, लीव इट फॉर द साइड बिंग, ताकि जब आपका वो स्टैटिक ख़त्म हो जाए, नाउ दैट यू विल बी डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स, आपके पास न्यूज़पेपर से रिलेटेड डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद होंगे. बिकॉज इट्स हाईली इम्प्रैक्टिकल कि आप अगला 3-4 महीना लगा के इकोनॉमिक के बेसिस करोगे, फिर आप वापस आओगे फरवरी पे इस सर्वे के न्यूज़पेपर वाले पॉइंटर्स को उठाने के लिए. ऐसा नहीं होगा. यू विल ओनली प्रोबेबली देन सी द सर्वे फॉर दैट मैटर. सो वाई टू डू इट समथिंग जो कि शायद आप कभी करो ही ना. अभी इसको करके रख लो. इवन इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट इतना तो आप समझ ही पाओगे ना कि उसमें से नोट क्या क्या करना है. लेट्स से कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ऐसा हाईलाइट कर दिया है जो कि लेट्स से कुछ यूनिक है. ठीक है, अभी तो मैंने भी पूरी डिटेल नहीं देखी है, तो व्हेन यू विल ऑल्सो डू दैट, आप उसको आराम से अपना सेग्रीगेट करके रख लो. सिमिलर विल गो फॉर योर बजट. न्यूज़पेपर में जितनी भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, बोथ फ्रॉम योर स्टैटिक, जिसमें कि आपका फैक्ट्स डेटा वगैरह आ जाएगा एट्सेट्रा, और जो भी लेट्स से रीसेंट अनाउंसमेंट रहेंगे, कुछ नए अनाउंसमेंट रहेंगे वो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे अगर मान लीजिए कोई स्कीम वगैरह की भी बात है तो वो सब, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए रहते हैं. फॉर एग्जांपल डेफिसिट्स वगैरह को लेके बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक इनका रहता है. आप सरकार के वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल दोज डिटेल्स. तो न्यूज़ अच्छा, और जो एनालिसिस, क्योंकि अभी अगले कुछ दिन तक ये सब कवर होते रहेगा, इसको आप साइड में प्रिपेयर करते चले जाइए. बजट का जो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब बजट इटसेल्फ एज अ डॉक्यूमेंट क्या है, वो आप 2 जगह से करेंगे. एक तो आपका इकोनॉमी में जहाँ से भी आप बेसिक करेंगे मिल जाएगा. अदर थिंग यू विल डू फ्रॉम पॉलिटी. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में जब आप आर्टिकल्स करेंगे पार्लियामेंट में, यू विल टॉक अबाउट बिल्स एक्सेट्रा, मनी बिल्स पर जब बात होगी, फिर और फाइनेंशियल बिल्स पर बात होगी, उसी पूरे सेक्शन में यू विल कर अक्रॉस सेवरल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जहाँ पर कि आप बजट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसमें बजट टर्म तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ ही नहीं होता है. वहाँ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, साल भर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार रिलीज कर रही है, वहाँ से आप सारे की कॉन्सेप्ट स्टैटिक जो है वो बजट के उठाओगे, इकोनॉमी और पॉलिटी से, और तब आप रियल बजट डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करोगे. सो ये सब एक्सरसाइजेज आपको साइमल्टेनियसली करते जाना है. ये दोनों ओवरलैप करेगा पॉलिटी और इकोनॉमी में. ठीक है, इतना मैंने इसमें काफ़ी कुछ बता दिया. तो इस तरीके के जितने, जैसे मैंने आपको बोला, सारे डिटेल जो हैं वो सब आपको फिगर आउट करते जाना है और एक जगह पर नोट करते जाना है. आपको देखिए बहुत सारे न्यूज़ जो हैं वो उसी चीज़ से रिलेटेड ही मिलेंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली कवरिंग. Then Election Commission of India as a constitutional body is what I've already talked about, कि you have to prepare separately. यहाँ पर एक न्यूज़ देखिए. अब ये क्या पॉलिटिकल न्यूज़ जो हो रही है कि CM ब्लॉक्स गवर्नर ऑन ट्विटर, दैट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न. ठीक है, पॉलिटिक्स के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से हमको नहीं करना है. लेकिन यहाँ पे एक जिक्र हुआ है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ आर्टिकल 159. नाउ क्योंकि अब ये हाईलाइट हो गया ना, न्यूज़ में आ गया, अब आप इसका स्टैटिक प्रिपेयर करोगे. यू विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सी आर्टिकल 159. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट जस्ट बाय रीडिंग इट, गुड इनफ. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, फाइंड दैट हाउ डज इट रिलेट टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़ क्लिप. उससे रिलेटेड जो भी और कॉन्सेप्ट्स होंगे स्टैटिक, वो फिर आप पॉलिटी में कवर करोगे. बट दिस इज़ हाउ यू कीप अ नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कमिंग इन द न्यूज़. अब साल 1.5 साल में जितने भी ऐसे ज़रूरी आर्टिकल्स, ठीक है, न्यूज़ में आएंगे, उसका आपके पास सेपरेट नोटिंग होना चाहिए. बिकॉज एट टाइम्स इन द एग्जाम दे कैन डायरेक्टली गिव यू द आर्टिकल नंबर एंड आस्क यू कि ये किस चीज़ के बारे में है.
तो जब ऐसा कुछ होगा तो आपके पास उसकी, अब वो इतने सारे आर्टिकल्स हैं, वो रैंडम किसी भी को उठा के नहीं पूछते हैं. दे हैव सम रीज़न ऑफ आस्किंग दैट. And the most important reason could be that something has already figured out in the news. So it's always better that you focus on this from this perspective. यहाँ पे MSP वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे उसमें आपका एक पूरा सेक्शन भी दिया हुआ है GS3 के सिलेबस में. दे हैव स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट MSP, PDS एट्सेट्रा. तो और फिर जैसे आपका बफर स्टॉक्स वगैरह होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो वो आपको वहाँ पर डिटेल में करना है. यहाँ तो सिर्फ उसका जिक्र है, बाकी इट इज़ जस्ट अबाउट एजुकेशन एट्सेट्रा. तो ये फार्मर इश्यूज़ में आ जाता है. इस पेज पर ओके, यहाँ पर एक टर्म मेंशन किया गया है, दैट इज़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. तो आपको बस इसका स्टैटिक पता होना चाहिए. इस न्यूज़ में कुछ लेना देना नहीं है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ जो टर्म मेंशन किया हुआ ये आपको पता होना चाहिए. तो व्हेन अगेन इन योर लक्ष्मीकांत यू विल डू टॉपिक्स लाइक लेट्स से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेट्रा. तो वहाँ पर आप जब कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करोगे तो वहीं पर एक आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी टर्म मेंशन हो जाएगा. आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए बनता है. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस पेज में भी और ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so here they talk about can striking down an exception create new offense? High Court. अच्छा, ये न्यूज़ क्या है अब ये देखिए, क्यों इसको मैंने मार्क करा. बिकॉज यहाँ पर बात हुई है until marital rape becomes an explicit crime it will remain condoned, argues the council. बिकॉज ये जो इशू है, इट इज़ नॉट अबाउट कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का न्यूज़ है या क्या है, ठीक है, लोकल न्यूज़ है, नहीं. जो इशू है, इशू बेस्ड हमेशा तैयारी करनी है. द इशू दैट दे टॉकिंग अबाउट इज़ द मैरिटल रेप. ठीक है, तो ये विमेन से रिलेटेड मुद्दा आ जाता है. देन ऑफकोर्स इसमें लॉ इन्वॉल्व होता है. दे टॉक अबाउट सेक्शन 375 ऑफ IPC विच ग्रांट्स इम्यूनिटी टू द हस्बैंड्स अगेंस्ट मैरिटल रेप एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वुड. अच्छा, ये पूरा न्यूज़ था कि जो प्रोविजन है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहे तो वुड लीड टू क्रिएटिंग अ न्यू ऑफेंस. अब इंडिया में मैरिटल रेप इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और लॉ. कि होता क्या है, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एनी कोर्शन, ठीक है, आफ्टर द मैरिज इफ़ यू कंसिडर दिस एज अ मैरिटल रेप और नॉट. तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से डिटेल में समझ में आएंगी और आप इसको पढ़ोगे तो इशू बेस्ड आप उसको कवर करोगे. ठीक है, विमेन रिलेटेड, सोसाइटी रिलेटेड मुद्दे में ये काउंट हो जाएगा. These two are the editorials, so we are skipping. Next here, because it is about the Prime Minister talking something related to National Commission of Women. ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बिकॉज दैट देयर वाज दिस 30th फाउंडेशन डे ऑफ द NCW, लेकिन आपको इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करना है. ऐसे सारे कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, फॉर द बैकवर्ड कास्ट, फॉर द माइनॉरिटीज़, फॉर द विमेन एट्सेट्रा, फॉर द चाइल्ड, ऐसे जितने भी इम्पॉर्टेंट कमीशन हैं, कमिटीज़ रहती हैं, आपको सारे को अलग से प्रिपेयर करना है. और आपको टाइप ऑफ बॉडी पता होनी चाहिए, मैंडेट पता होना चाहिए, और फिर उसमें जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करेंट के हिसाब से आएगा जो कि आपको लगे कि अगेन 1-1.5 साल के लिए रेलिवेंट हो सकता है, दैट माइट बी यूजफुल फॉर द कमिंग 1 or 1.5 years, यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन. यहाँ पर दे हैव टॉक्ड अबाउट अगेन कोई भी ऐसा इटैलिक टर्म, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कम अक्रॉस टर्म्स लाइक लेट्स से एमिकस ज्यूरे और सब जुडिस और फिर लेट्स से सुओ मोटो एट्सेट्रा, इस तरीके के सारे टर्म्स जो कि इटैलिक्स में लिखे रहते हैं, इनका एक रेलिवेंट मतलब इसकी एक मीनिंग होती है, उसका एक रेलिवेंस होता है विच यू शुड सेपरेटली कीप नोटिंग डाउन, बिकॉज इन द आर्टिकल्स ऑल्सो टाइम एंड अगैन यू विल फिगर दीज वर्ड्स आउट. तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको फिर लगेगा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं. सो इट्स बेटर दैट यू कीप प्रिपेयरिंग. देन बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ द लोकसभा, आपको 2 तरह की कमिटीज़ प्रिपेयर करनी है स्टैटिक में, पॉलिटी के, वो आप साइड में करते जाइए क्योंकि उसका करंट से कोई लेना देना नहीं है. वंस यू डू द स्टैटिक ऑलरेडी फिर जो करंट में आएगा आप उसमें बस उसमें इनपुट कर सकते हो, उसको एडिशनल बना सकते हो. तो लक्ष्मीकांत में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक कैबिनेट कमेटी पर, एक पार्लियामेंट्री कमेटी पर. ठीक है, उसके डिटेल्स आप वहाँ से ले लीजिए स्टैटिक का, और उसमें कोई भी ऐसा करंट अफेयर्स का न्यूज़ आता है जो कि आपको लगे कि ऐड होना ज़रूरी है. कोई मान लीजिए कोई नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, किसी पुरानी कमेटी को अबॉलिश कर दिया गया, कुछ नए चेंजेस लाए गए उसके फंक्शनिंग में, या कुछ भी ऐसा चेंज आता है, यू जस्ट कीप नोटिंग डाउन. बट उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि ये दोनों टाइप की कमिटीज़ होती क्या हैं, काम क्या करती हैं, एट्सेट्रा. अच्छा, सो इस तरीके के जब देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिग्निटरी ऑफ द कंट्री इफ दे आर मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर थिंग, आप उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के अगर आपको मिले तो आप रख सकते हो. और यहाँ पे इन जनरल ये सारे पॉइंट्स यूज़ हो जाते हैं कि सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो जैसे अगर आप यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हो तो पार्लियामेंट,
या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके जो सेशंस होते हैं, either budget or the other sessions are very important and they should be made constructive and fruitful. This तो point you can use in general answers also, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट को लेके या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ को लेके एक इशू में क्वेश्चन में आ सकता है एनालिसिस के बेसिस पर कि फंक्शनिंग में क्या क्या इश्यूज होते हैं. तो वन मेजर थिंग इज़ कि इट इज़ नॉट बीइंग डेल्ट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर. यूजुअली डिसरप्शन हो जाते हैं और काम फंक्शनिंग नहीं हो पाती. एक बार और मैंने आपको भी 2-3 दिन पहले जनवरी के पेपर में बताया था राज्यसभा के फंक्शनिंग को लेकर के, ठीक है, परसेंटेज पर बात हुई थी. तो उस तरीके की चीज़ें आप कोलैबोरेट करके अपने पॉइंट्स बना सकते हो. इंडिया रशिया होल्ड डिस्कशन ऑन यूएनएससी एजेंडा, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर इनके क्या डिस्कशंस हुए, जस्ट रीड इट. यूएनएससी आपको मैंने पहले ही बोला है, इनकी एक सेपरेट बॉडी आपको अलग से प्रिपेयर करनी ही है. इसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं है. हियर दिस होल पेज इटसेल्फ इज़ ऑन द इकोनॉमिक सर्वे. तो मैंने आपको जैसे बोला, तो सारे हेडलाइंस जो हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपके पास इसका सेपरेट नोटिंग होना चाहिए, बिकॉज द होल सेक्शन इज़ ऑन दैट ओनली. तो इस पर अलग से हमको डिस्कस करने का कुछ है नहीं. देन हियर दिस इज़ द वर्ल्ड पेज, और लेट्स से IR की जब हम बात करेंगे तो इट टॉक्स अबाउट तालिबान किल्ड 100 एक्स अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स, UN. बस आपको ये सब पता, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे ये सब कोई नंबर और ये सब की ज़रूरत है, बिकॉज तालिबान को लेके ऑलरेडी अब सिक्योरिटी मामला, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, वो इशू हो जाता है. और फिर UN इसमें अगर कुछ कह रहा है तो बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका रेलिवेंस इज़ फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो. दैट्स इट. अभी हमने कल ही, जो जिन लोगों ने जनवरी वाला वीडियो देखा होगा, आपने उसमें सुना होगा हाउथी रेबल्स के बारे में. तो मैंने बोला था प्रीलिम्स में दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट मैचिंग की कोई भी ऐसा जो ग्रुपिंग है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, किस रीजन से रिलेटेड है, ठीक है. तो आपने एक हाउथी रेबल्स का देख लिया था, यहाँ पे आप हिजबुल्ला की बात कर रहे हो, सो दैट इज़ लेबनन्स पावरफुल हिजबुल्ला ग्रुप. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. बाकी मैपिंग को लेके लेट्स से सीरिया हो गया आपका, उसमें कैपिटल डेमास्कस वगैरह वो सब पता होना चाहिए. रशिया US यूक्रेन टू स्पार एट UN, आपको पता ही है यूक्रेन इशू चल रहा है, यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी मैंने बहुत बार जनवरी वाले में बात की है. एक दिन एक एक्सप्लेनर भी निकला हुआ था, वहाँ से आप उसको कवर करेंगे. तो आपको ऑलरेडी ये सब जो है रिलेटेड न्यूज़ है, तो आपको यूक्रेन इशू से रिलेटेड सारा समझ में आ जाएगा. यहाँ एक छोटा सा न्यूज़ है रिलेटेड टू अफ्रीकन यूनियन, आपको बस पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज़ उसकी एक 15 मेंबर की काउंसिल है, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और ओवरऑल ये यूनियन क्या काम करता है. दिस इज़ जस्ट फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. देन हियर यू हैव द सेम UNSC कमिंग. यहाँ पर दे टॉक अबाउट UAE इंटरसेप्टिंग द येमेन रेबल मिसाइल. अभी हमें ज़्यादा, अगर आप यहाँ से कीवर्ड्स उठाते हो तो आप स्टार्टिंग में जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको कवर करोगे, जो आपका साइंस एंड टेक में स्पेस में आ जाएगा, ठीक है, उसको आप वहाँ से कवर कर लोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मैपिंग वाइज में आपको UAE, येमेन, ये सब का लोकेशन पता होना चाहिए, और हमारे इसमें कुछ काम का नहीं है. ऑफकोर्स इजरायली प्रेसिडेंट की बात हो रही है, आपको इसराइल का लोकेशन पता होना चाहिए. सिटिशन जैसे एक टर्म आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है. कोई भी देखिए सब न्यूज़ जो हो रहा है ना, 2 जेल्ड इन हांगकॉन्ग फॉर सिडिशियस पब्लिकेशन, अब आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये हमारे किसी काम का नहीं है फ्रॉम द न्यूज़ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. हमने पढ़ लिया और इग्नोर कर दिया, बात खत्म हो गई. लेकिन अगर मुझे नहीं पता है कि ये जो टर्म है सिडिशियस, इसका ही मीनिंग क्या है, तो फिर ये पूरा न्यूज़ वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ टर्म यू विल कम अक्रॉस टाइम एंड अगेन. तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म, वो पता होना चाहिए. बिजनेस इकोनॉमी में आएंगे तो टू टॉक अबाउट जनवरी सी सेकेंड हाईएस्ट GST कलेक्शन. बस GST पर आप एक अपना ध्यान रखते जाइए कि कब अप डाउन हो रहा है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इफ़ यू डू द डिटेल्स ऑफ GST काउंसिल, मैंने आपको पहले बोला हुआ था, वो एज अ बॉडी पॉलिटी में आएगी. एंड इन जनरल अबाउट GST, क्योंकि मेंस में एक बार सीधे सीधे GST पर क्वेश्चन आ चुका है कि जब GST जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसमें क्या क्या से जो और टैक्सेस हैं उसको ये सारा सबड्यू कर लेता है, सबको मिला के ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है. तो इस तरह की बेसिक डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्स ऑल्सो आपको पता होना चाहिए. हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट GTP स्लाइड, लेकिन उसमें एक कमीशन की बात की, या लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन की बात की, दैट इज़ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. तो अब आपको जो NSO है उसका डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैट्स के केस में, डेटा के केस में आपको इन तरह के मुद्दों की जानकारी या फिर जो ऑफिसेज हैं उनका अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हो तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू को रिलेट कि कौन सा डेटा कौन सी बॉडी पब्लिश करती है, इसलिए यू विल नो.
इस पे मैं फर्स्ट क्लास में बात कर चुकी थी जनवरी वाले में, तो जिन्होंने नहीं देखा यू विल हैव टू चेक, बिकॉज इफ यू आर रैंडमली पिकिंग एनी डे एंड स्टार्टिंग डूइंग इट, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. ठीक है, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज वेरी कोरिलेटिव. तो अभी आप अगर 1 फरवरी कर रहे हो तो अगले 4 दिन 5 दिन में आप जो भी करोगे दैट विल बी रिलेटेड टू द सेम न्यूज़. तो आपके पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आई नो द बैकिंग ऑफ इट, क्योंकि न्यूज़ डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है. आपको बस क्योंकि इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड है इसलिए यू विल जस्ट रीड इट. यहाँ पर IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में इन दोनों के लिए. इसको आप स्टैटिक प्रिपेयर करेंगे. देन ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट लेट्स से लॉ रिलेटेड. सो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. ठीक है, इस तरीके से जो भी लॉ कमिटी, इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी की बात कर दी विच हैड रिकमेंडेड द अडॉप्शन. ओवरऑल तो आप न्यूज़ पढ़ोगे ही क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड है. जब पढ़ोगे तो फिर अपना पढ़ लेना, बट फॉर द टाइमिंग स्टार्टिंग में ये सब जो भी आपके कमीशंस हैं नेशनल या इंटरनेशनल साइड में प्रिपेयर करते चलेंगे. ऐसी सारी चीज़ें जो आपको लगेगा कि आपको नहीं आती हैं आप प्रिपेयर करेंगे. जब आप IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या काम होता है इसमें, फिर आप इससे रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी के भी बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करती है. यही सब प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ की बात हो रही है. ये सब बस आपको डेटा ध्यान में रखते जाना है जो कि आपको लगे कि लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है. ठीक है, जो कि आपको 1-1.5 साल बाद सस्टेनेंस में हेल्प होगा. टर्मिनोलॉजीज लाइक और कॉन्सेप्ट्स लाइक NPS वगैरह, कासा क्या है, ये सब बस पता होना चाहिए. ये सब हो जाएगा जब आप स्टैटिक कवर करोगे, तो घबराना नहीं है. इसका तरीका कैसे क्या हो सकता है ये देखिए, समझिए. स्पेशली इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो एकदम से ना चीज़ें आप रैंडमली कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक उठा के वेब सर्च करके नहीं पढ़ सकते. उसको थोड़ा ज़ीरो से करना शुरू मतलब ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यू बिल्ड अप ऑन द सेम टॉपिक. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होते हैं. पॉलिटी वगैरह में फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मैं कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू ऑफ देम विच यू कैन इंडिपेंडेंटली रीड ऑल्सो. लेट्स से आई एम गिविंग यू सर्टन हेडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी की बात है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. Even if you later understand the whole concepts related to election or the election process or the parties etc., only as an organization you can still prepare election commission of India or let's say GST council. ठीक है, तो थोड़ा चल जाता है, मैनेज हो जाता है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में, इकोनॉमी वगैरह में या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में जो कि आपको न्यूज़पेपर में लग रहा है कि कुछ यूनिक सी चीज़ आ रही है लेकिन मुझे इतना स्टैटिक नहीं पता है एंड इज़ गोइंग टू टेक मी टाइम टू फिनिश द स्टैटिक ऑफ दैट, तो आप साइड में एक नोटबुक रखेंगे जहाँ आप सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स और टॉपिक्स को लिस्ट करते जाएंगे. अब आपका एक सेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने सिलेबस के हिसाब से ब्रॉडर सारे सेक्शन में कर लिया. ठीक है, कि कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ एनवायरनमेंट के हैं, कुछ सिक्योरिटी के हैं, कुछ IR के हैं. ऐसे करके आपने अपनी लिस्टिंग बना ली सब्जेक्ट वाइज. अब जब आप उस सब्जेक्ट का स्टैटिक करोगे तो अब आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी है. तो जब आप उसका स्टैटिक करोगे तो आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा हाँ, ये तो मैंने न्यूज़पेपर में एक बार सुना था. भले आज आपको लेट्स से आपने NPA अपने इकोनॉमिक्स वाले लिस्ट में नोट करके रख लिया. अब आपको अभी नहीं पता NPA क्या है, आपने ऑनलाइन भी खोजा, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, रहने दो. अब इतना तो लेकिन समझ आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि ठीक है ये कुछ तो था जो कि बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था, बहुत बार न्यूज़ में आया. तो मुझे इतना पता है कि चलो ये बैंकिंग सेक्टर से तो रिलेटेड है, मैंने इसको लिख के रख लिया. अब जब व्हेन आई विल डू द इकोनॉमिक्स का बेसिक्स, ठीक है, तो मेरा आएगा ना बैंकिंग सेक्टर बीच में, वो आएगा ही स्टैटिक में प्रिपेयर करना. तो वहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक सोर्स आपको बताएगी इसके बारे में, तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट. हो गया, बात खत्म. सिंपल साउंड होता है भी, इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू पुट इन मोर एफर्ट फॉर दैट. FDI ऑल टुगेदर इज अ सेपरेट टॉपिक इन योर GS3, प्रिपेयर इट. क्योंकि ये सब सर्विस से रिलेटेड ही डेटा है, इकोनॉमी का है तो सब वहीं से निकाला हुआ है. यहाँ देखिए इस तरीके से जो न्यूज़ आती है उसको आप कैसे प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो दे हैव गिवन यू अ पॉइंट. लेट्स से द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाया द उद्यम पोर्टल अनवील्ड इन जुलाई 2020 टू नर्चर द MSMEs हैज़ बूस्टेड देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, अब क्या है कि जो MSMEs हैं उनके लिए ये उद्यम पोर्टल है. तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है ना कि ये पोर्टल किस सेक्टर से रिलेटेड है, किस टाइप की इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो आपने बात कर ली. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली एथेनॉल ब्लेंडिंग पर बात की गई है. इसको ये 2-3 जगह न्यूज़ में आया है. पेट्रोल के केस में ये आपका साइंस प्लस इकोनॉमी दोनों के हिसाब से, जनरल साइंस प्लस इकोनॉमी दोनों के हिसाब से हेल्पफुल होता है और प्रीलिम्स में इसका बहुत यूजेज है. सेंटर हैज़ अडॉप्टेड MSP बट स्टेट्स मस्ट फैसिलिटेट द क्रॉप शिफ्ट. हमने पहले ही बात की, इकोनॉमिक सर्वे MSP जब आप एग्रीकल्चर करोगे आप रिलेट कर पाओगे.
शुगर प्रोडक्शन को लेके बात की गई है, आउटपुट को लेके बात की गई है, इकोनॉमिक सर्वे, ऐसा जो भी डेटा आपको देता है, मेक श्योर दैट यू हैव द डिटेल्स ऑन दैट. यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर इट. स्पोर्ट्स का ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अ लॉट इन द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज डू चेक. अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने कितना अच्छा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक एक्सप्लेन करा है, वेर इन दे टॉक अबाउट दैट द लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स पावर टू सस्पेंड अ मेंबर. कि किसी लेजिस्लेटिव पावर का कितना लिमिट है टू सस्पेंड अ मेंबर, व्हाट इज़ द राइट, एंड देन होल थिंग दे हैव एक्सप्लेन. तो कुछ एक चीज़ है जहाँ पे कि उन्होंने न्यूज़ से बात की, ठीक है, कि चलो जुलाई में ये हादसा हुआ, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे डिफेंड करा, रीजंस क्या दिए गए कोर्ट के लिए, प्रिंसिपल्स क्या क्या यूज़ होते हैं इस चीज़ में या निकल के बाहर आते हैं. तो आप एक मुद्दा पकड़ लिया आपने और उसके मल्टीपल डायमेंशंस, इस तरह के जो एक्सप्लेनर वाले पेज होते हैं, दे आर एक्सप्लोर्ड. देन यहाँ पर इन्होंने बात किया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के बैलेंस को लेके. दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस यूएस सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. जस्टिस ने कुछ बोला दैट ही विल बी रिटायरिंग एट द एंड ऑफ द करेंट टर्म. अब उनका जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो कैसे काम करता है. Why is it important for us to know that? Because they have given you a section in your syllabus, GS2 में, wherein you have to compare the constitutions of different countries. And constitution will talk about the legislature, executive and judiciary, right? So some important things, some basic elements आपको जो basic differences होते हैं वो पता होना चाहिए. इधर उधर उसके लिए भटकने की ज़रूरत भी नहीं है. This is how you are getting those details. You just have to कीप नोटिंग दैम डाउन एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो अगर आप यूएस सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ लेट से करते हो, उसकी डिटेल्स यहाँ से ले लेते हो, तो आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए लेकिन हाउ द थिंग्स आर पैरेलल फॉर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. ठीक है. देन यहाँ फार्मर्स आइडेंटिटी को लेके बात की गई, ये आपका एग्रीकल्चर में फिट इन हो जाएगा. या सो दिस इज़ वेयर वी एंड द डिस्कशन ऑन 1st of February. Simultaneously you will be getting all the other newspaper details related to the different days on February, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, and January का साइड में सब कुछ चलता जाएगा. So I would again reiterate, please do like, comment, share and subscribe to the channel. Also you will be getting a Telegram link in the description box and in the comment section. वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं ताकि कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस चैनल, यू विल गेट देयर. Apart from that, if in case I would need to share any PDF or any written material or note making or something like that, so that can be uploaded there, because then I will have no other means to do that. So that's the only way out, that you please be a part of that Telegram channel. I hope to see you guys in the next video. Thank you so much in case you have watched till this point of time. Take care till then. Bye bye.